لاہور نیوز میں ہوئی ربناس علی صاحب جان چکے ہیں۔ آغاز میں بات کریں گے موسم کی، تو آپ کو بتائیں کہ لاہور میں صبح سویرے چلنے والی ہلکی اور ٹھنڈی ہوا نے ایک مرتبہ پھر سردی کی شدت کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ شہر کا کم از کم ٹمپریچر 13 اور زیادہ سے زیادہ 16 تک جانے کا امکان ہے۔ مزید موسم کے بارے میں جان لیتے ہیں زینب۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جہاں پچھلے کئی روز سے سردی کی شدت کم ہوتی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا تھا، اور آج ایک مرتبہ پھر دوبارہ صبح سویرے لاہور میں جو ہے وہ سردی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ تاہم پچھلے گزشتہ روز جو ہے وہ دن بھر لاہور میں سورج اور بادلوں کی آگ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا تھا، اور دوپہر کے اوقات میں بھی سورج اور بادلوں کے مابین کشمکش جو ہے وہ چل رہی تھی، جس کے باعث موسم نے ایک مرتبہ پھر انگڑائی لیا، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز کی طرح آج بھی اس کا اثر نظر آ رہا ہے، اور آج بھی صبح سویرے لاہور میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر کئی روز بعد سردی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ صبح سویرے جو لاہور کا درجہ حرارت 15 سے 16 ڈگری جا چکا تھا، آج جو ہے وہ صبح سویرے اس وقت لاہور میں جو درجہ حرارت ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا درجہ حرارت کم از کم 13 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر فضائی آلودگی کی بات کرتا چلوں تو آج جہاں پر سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو وہیں پر لاہور کے فضائی آلودگی میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ دوبارہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر جا چکا ہے، جس کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مستحقین کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاق اور پنجاب کی جانب سے الگ الگ امدادی پیکیج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 13,000 روپے ملیں گے، اور پنجاب میں مستحقین کو 10,000 روپے فی کس ملیں گے۔ عمران اکبر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ الگ الگ امدادی پیکیج لاکھوں مکینوں کو 23,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 1,21,00,000 افراد کو فی کس 13,000 روپے دینے کا اعلان۔ چاروں صوبے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مستحقین کو 13,000 روپے فی کس دینے کے ذمہ دار ہیں۔ انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 2 لاکھ مستحقین کو 13,000 روپے فی کس فراہم کیے جائیں گے۔ اسی طرح لاہور سمیت صوبے بھر میں 40 لاکھ مستحقین کو 10,000 روپے فی کس فراہم کیے جائیں گے۔ لاہور میں سوشل اکنامک سروے کے مطابق 60,000 سے زائد مستحقین کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ لاہور میں 20,000 ATM کارڈز کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ سیکنڈ فیز میں 25,000 ATM کارڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ تیسرے فیز میں 10,000 ATM کارڈز کی تقسیم ہوگی۔ ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا کہنا ہے کہ سوشل اکنامک سروے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے نادار مستحق لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماہ رمضان میں کاروباری سرگرمیوں پر بڑا ریلیف۔ کاروبار کے لیے اوقات کار کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ 24 گھنٹے کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ عمران اکبر کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ ماہ رمضان میں کاروباری اوقات کی پابندی نہیں ہوگی۔ 24 گھنٹے کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سمیت الائڈ محکموں کو ہدایات جاری۔ زوم میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے دکانوں کے اوقات کار ختم کرنے کی ہدایات کی۔ ذرائع کے مطابق رمضان المبارک میں بازار، کمرشل سٹورز، بیکریز، ہوٹلز اور دکانیں رات 10 بجے بند کروانے کے اوقات کار ختم کر دیے گئے۔ ماہ رمضان میں 24 گھنٹے کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ذرائع کے مطابق عوام اور کاروباری حضرات کی سہولت کی خاطر اوقات کار کی پابندی کو ختم کیا گیا ہے۔ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں رمضان سہولت بازار فعال کیے گئے ہیں۔ شہریوں کو معیاری اشیاء 10% تک رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔ لاہور میں 10 سہولت بازار اور 3 آن دی گو بازار رمضان بازاروں میں تبدیل کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے عاطف پرویز۔ ماہ رمضان میں عوام کو سہولت اور آسانیاں فراہم کرنے کی کاوشیں۔ پنجاب بھر میں 74 سہولت رمضان بازار فعال کر دیے گئے۔ سہولت بازار رمضان بازاروں میں تبدیل۔ سبزی، پھل، کریانہ، چکن، آٹا اور چینی کے الگ الگ سٹورز قائم۔ 16 بنیادی اشیاء پر سرکاری نرخوں سے 10% تک رعایت دی جائے گی۔ ہر سہولت رمضان بازار اور آن دی گو بازار میں آٹے کا ٹرک موجود۔ فی بوری قیمت 850 روپے۔ سرکاری سٹورز پر چینی فی کلو 140 روپے مقرر۔ سہولت رمضان بازاروں میں 5
किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी दस्तयाब है। हुकाम का कहना है कि ये रमजान सहूलत बाजार 29 रमजान तक कायम रहेंगे। ईद के हवाले से भी खुसूसी स्टॉल्स लगाए जाएंगे। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। रमज़ान में बिजली की बिलातातुल फ्राहमी के लिए लेस्को अफसरान की ड्यूटियां लग गई हैं। 18 से 23 फरवरी तक शहर में चीफ इंजीनियर TNG लेस्को हेड क्वार्टर में ड्यूटी अंजाम देंगे, जबकि तफसीलात के मुताबिक लेस्को की जारी करदा ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक 18 फरवरी से 23 फरवरी तक अफ्तार में चीफ इंजीनियर PNT हेड क्वार्टर में ड्यूटी देंगे और 24 से 28 फरवरी तक शहर में चीफ इंजीनियर PIU और अफ्तार में चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 1 मार्च से 5 मार्च तक शहर में चीफ इंजीनियर PNT और अफ्तार में चीफ इंजीनियर TNG ड्यूटी देंगे। 6 मार्च से 10 मार्च तक के औकात में चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट और अफ्तार में चीफ इंजीनियर PIU ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 11 मार्च से 15 मार्च तक के शहर में चीफ इंजीनियर TS और अफ्तार में चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आमद है। अफ्तार दस्तरखान के लाजमी जूस खजूर की मांग में इजाफा हो गया है। होल सेल और परचून बाज़ारों में कीमतें बढ़ गई हैं। ईरानी, मुसाफती और असील समेत दीगर इक़सामी खजूरों के नर्ख में इजाफा किया गया है। रिपोर्ट करें। इफ्तारी और खजूर लाजिम व मलजूम, मगर रमजानुल मुबारक से कबल ही कीमतों में इजाफा। ईरानी खजूर 650 से 680 रुपए किलो में दस्तयाब। होल सेल में ईरानी खजूर की कीमत 450 से 500 रुपए किलो है। खजूर असील के परचून दाम 550 से 580 रुपए किलो, जबकि होल सेल में कीमत 300 से 350 रुपए किलो तक है। मुजाफाती खजूर मंडी में 800 रुपए से 1000 रुपए किलो, मगर परचून में यही खजूर 1300 से 1600 रुपए किलो में फरोख्त। सुकरी खजूर 2600 रुपए किलो और अजवा खजूर 2500 से 3800 रुपए किलो तक बिक रही। खजूर इंपोर्टर मूसा मलिक का मौकिफ है कि मंडी में मांड मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन खजूर की सप्लाई कस्टम्स हुकाम की वजह से मुतासिर है। कस्टम वालों को 6-7 लाख रुपए डिमांड करते हैं एक कंटेनर के पीछे, ठीक है, वो पे करते हैं, फिर कंटेनर छूटता है, फिर रास्ते में भी जब कराची से माल निकले, ताफ्तान से निकले, कोयटा से, हर जगह गाड़ियां रोकते हैं, हर जगह गाड़ियां रोक के तंग करते हैं। इधर डिमांड होती है, इधर कस्टमर पे चढ़ा होता है, ठीक है, माल होता है कम और क्या नाम है, कस्टमर होता है ज्यादा, फिर उसकी वजह से रेट ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। खरीदार कहते हैं रमजान की आमद के बायस खजूर की कीमत में होश रुबा इजाफा किया गया है। पिछले साल हम लेके गए 7,500 रुपये मन, इस वक्त 13,500 रुपये मन दे रहे हैं। ये देख लो साल में कितना फर्क पड़ गया। 14, 13,500 में दे रहे हैं। खजूर का काफ़ी रेट बढ़ गया हुआ है। रमज़ान जब शुरू होने लगता है तो खजूर का रेट ज़्यादा हो जाता है। कोई भी चीज़ इधर से लेके जाएं, अगर 500 रुपये किलो है ना, 22,000 रुपये किलो है। खजूर की कीमतों में इजाफे ने अवाम की परेशानी बढ़ा दी है। कैमरामैन उमर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, रमज़ान के दौरान स्कूल्स के औकात कार भी जारी कर दिए गए हैं। स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे, छुट्टी दोपहर 1 बजे होगी। रमज़ान के पेश नज़र महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों के औकात कार जारी कर दिए हैं, जिसका इतलाक पूरे सूबे में होगा। रमज़ान मुबारक के दौरान स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे, छुट्टी दोपहर 1 बजे होगी और जुम्मे के रोज़ स्कूलों की छुट्टी 12:30 बजे हो जाएगी। नए शेड्यूल के मुताबिक रमज़ान के 3 रोज़ उस्ताद को भी हफ्ते के दिन बाकायदा छुट्टी दी जाएगी, ताकि तदरीसी अमले को सहूलत फराहम की जा सके। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नए औकात कार का मकसद तलबा और उस्ताद को रमज़ान मुबारक में सहूलत फराहम करना और साथ ही साथ तालीमी सरगर्मियाँ मौसम अंदाज में जारी रखना है। लाहौर बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कैथेड्रल चर्च लाहौर में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजहबी रवादारी और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के फ़रोग़ के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। शुरा की जानिब से मजहबी हम आहंगी, बर्दाश्त और मुकाबले के फ़रोग़ पर भी जोर दिया गया। रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। कैथेड्रल चर्च में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मजहबी हम आहंगी और बर्दाश्त पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में तमाम शहरी बराबर हैं और मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए इज्तिमाई कोशिशें जारी रखना होंगी। हर किसी का अपने अपनी जगह बड़ा रोल है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके किरदार की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह
जो माशरे में एक निखार भी पैदा होता है और यहाँ अमन और सुकून भी कायम होता है। तो मजहबी रवादारी का असल मकसद यही है, अमांगी का मकसद यही है कि उसके क्या ऐसे काम किए जाए, इक़दामात लिए जाए ताकि अवाम को भी फ़ायदा हो और मज़हब जो पैगाम देता है उससे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि हुकूमत नजरिया पाकिस्तान के मुताबिक तमाम मज़ाहिब के एहतराम और यकजहती को फ़रोग़ दे रही है। ये वज़ीर आज़म हाउस 25 करोड़ आवाम का हाउस है, उनके मसाइल का हल का ये उनके दर्दों के दरमान है। और ये वज़ीर आज़म हाउस मुसलमानों का भी है, ये वज़ीर आज़म हाउस मसीहों का भी है, ये वज़ीर आज़म हाउस हिंदुओं का भी है, ये वज़ीर आज़म हाउस हमारे पारसी और सिखों का भी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब इक़दामात किए और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत की रियासत की पॉलिसी है और ये बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। दिफाई मैदान में अल्लाह ने हमें फातेह बनाया है, अब मुआशी मैदान में हम तब आगे बढ़ेंगे जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और ये पाकिस्तान सबका है, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि हुकूमत पंजाब अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मज़हबी आज़ादी के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है। अक़लियत मेरे सर का ताज है, अक़लियत मेरे दिल के बहुत करीब है और अगर मेरी अक़लियत की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ सबसे पहले मरियम नवाज से टूटेगी। ये मोहब्बत है अपनी अक़लियत के साथ, ये डिटर्मिनेशन अपनी अक़लियत के साथ, ये कमिटमेंट उस अक़लियत के साथ और अक़लियत के अंदर ये एहसास पैदा करना कि अक़लियत इस पाकिस्तान की, इस पंजाब की बराबर की शरीक है और उनके हकूक़ बराबर के हैं। कॉन्फ्रेंस में तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन ने शिरकत की। शुरका ने मज़हबी, माशरती और माशी इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए हुकूमती काविशों को सराहा। कैमरामैन अयूब के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। महकमा सेहत के हुकाम की निराली पॉलिसी लाहौर के बड़े और मसरूफ़ सरकारी हस्पतालों को अद्वियात का कम बजट देकर तनख्वाह दिया गया और कम बेड्स, जबकि रश वाले हस्पतालों को ज़्यादा फंड्स पकड़ा दिए गए हैं। अद्वियात के बजट में अदम तवाज़ुन के बायस सरकारी हस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजा भी मुतासिर हो रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर के 8 बड़े सरकारी अस्पतालों को फराहम करदा अद्वियात के बजट में बड़े अदम तवाज़ुन का इंकशाफ। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 2800 बेड्स पर मुश्तमिल एशिया की बड़ी इलाज का मियो अस्पताल को फी बेड सबसे कम बजट दिया गया। मियो अस्पताल के लिए सालाना फी बेड सिर्फ 4,76,000 रुपए मुख्तिस, जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को फी बेड 32,90,000 रुपए से जायद फंड्स फराहम। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को फी बेड 30 लाख रुपए दे दिए। सरकारी बजट में सर्विसेज अस्पताल को फी बेड 8,57,000 रुपए, जिना अस्पताल को 7,27,000 रुपए की फराहमी, लाहौर जनरल अस्पताल को 8,19,000 रुपए, सर गंगाराम अस्पताल को 19,46,000 रुपए फी बेड बजट जारी। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को फी बेड 24 लाख रुपए फराहम कर दिए गए। तिबी माहिरीन का कहना है कि बजट की गैर मुनसिफाना तकसीम के बाइस बड़े अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत पैदा हो रही है, जिससे गरीब मरीज सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी तरफ सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का कहना है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में बजट की मुनसिफाना तकसीम अव्वलीन तरजीह है। नए माली साल से बेड्स मरीजों के बोझ के मुताबिक अस्पतालों का नया बजट फार्मूला बनाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्दो-बदल। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल पर 84 और डीजल पर 76 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार है। अवाम हुकूमती फैसले पर नाराज दिखाई दिए। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का तोहफा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में फिर तब्दीली कर दी। पेट्रोल और डीजल महंगा, नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक भी हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 7 रुपए 32 पैसे इजाफे से 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर नाला कहते हैं किससे फरियाद करें, हुकूमत तो अपनी मर्जी करती है। गुजारा करना गरीब आदमी ने जिस तरह भी हो सकता है उसका, 5 रुपए बढ़े या 10 रुपए बढ़े, बस रिक्वेस्ट ही है गरीब आवाम का थोड़ा सा ख्याल करें। माड़े बंदे हैं जनाब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ 10 ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੋ ਬੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
तो बड़ा मुश्किल समाचार चलता पाया। पेट्रोल पर इस वक्त 84 रुपए 40 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ली जा रही है। डीजल पर 76 रुपए 21 पैसे फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से साल भर तकरीबन 1500 अरब रुपए इकट्ठे किए जाने हैं। ओगरा फार्मूले के तहत आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्खों में उतार चढ़ाव को सार्फिन तक मुंतकिल किया जाता है। इस बार पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 4 रुपए 93 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए 55 पैसे इजाफा हुआ, जिसको नई कीमत में एडजस्ट किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट ने दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी के मुताबिक नहीं किया जाता। पहले ही अवाम का कारोबार ख़त्म और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दिया जाए। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मंसूबे के लिए 20 अरब रुपए के फ़र्ज भी जारी कर दिए गए हैं। अब तक 1,21,000 से ज़ायद ख़ानदानों को बिला सूद कर्ज भी फ्राहम किया जा चुका है। मज़ीद 26,000 से ज़ायद ख़ानदानों को फौरी एक साथ जारी की जा सकेंगी। सूबा भर में इस वक्त 43,000 से ज़ायद घर ज़ेरे तामीर हैं। अब तक 172 अरब रुपए से ज़ायद घरों की तामीर के लिए भी खर्च किए जा चुके हैं और अब तक 6 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी कामयाबी से की जा चुकी है। 1,12,000 से ज़ायद ख़ानदानों को तामीर मुकम्मल करने के लिए दूसरी किस्त का इजरा किया जा चुका है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का इस मुताबिक कहना है कि 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर का हदफ भी मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का अज़्म, ज़राई मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है। रिपोर्ट करेंगे साहिदा बेन। काश्तकारों को बादस बर्दाश्त नुकसानात कम करने और रियल टाइम मार्केट मालूमात की फराहमी का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की कुल लागत 19 करोड़ 99 लाख 15 हजार रुपए रखी गई है। तकरीबन 5 करोड़ 62 लाख 75 हजार रुपए गाड़ियों की खरीदारी पर खर्च होंगे। PDWP फोरम ने माहौल दोस्त EV और हाइब्रिड गाड़ियों की खरीदारी पर भी गौर की हिदायत दी है। फैसलाबाद, सरगोदा, भावलपुर, मुल्तान और गुजरांवाला में मार्केटिंग सहूलती मराकज कायम किए जाएंगे। मराकज के जरिए किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज लिंक्स और गोदामों से मुंसलिक सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंसूबे के लिए 8 नई असामियों की मंजूरी दी गई है। मजमूई तौर पर 19 अफराद पर मुश्तमिल यूनिट कायम होगा। बजट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट और 5 मार्केटिंग सपोर्ट असिस्टेंट भी भर्ती किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से किसानों की आमदन में 15 से 20% तक इजाफे और सार्फिन को कीमतों में कमी का फायदा पहुँचने की तवक्को है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। फैसल अयूब खोकर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन जदीद और माहौल दोस्त तवानाई की फ्राहमी है। सूबाई वज़ीर तवानाई ने बैकअप सिस्टम को बेहतरीन और मौसर बनाने की हिदायत की है। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोकर की सदारत अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ। महकमा तवानाई के सालाना तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी तवानाई डॉक्टर फारूक नवीद और एडिशनल सेक्रेटरी माजिद इकबाल समेत दीगर अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोकर का कहना था कि रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए मनसूबों की निगरानी मज़ीद मजबूत बनाई जाए। ग्रीन एनर्जी के फ़रोग से पंजाब को तवानाई में खुद कफील बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी गई कि मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबे जून 2026 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत 67,184 सोलर सिस्टम्स भी नस्ब किए जा चुके हैं। सूबाई वज़ीर मवासलात की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। मलिक सुहेब अहमद बर्द को हाफिज़ाबाद, खान का डोगरा और मुल्तान में मुकम्मल होने वाली शाहराहों पर ब्रीफिंग दी गई है। सूबाई वज़ीर मवासलात को ब्रीफिंग में बताया गया कि हाफिज़ाबाद, खान का डोगरा 25 किलोमीटर शाहरा को मुकम्मल करके M2 मोटरवे से मुंसलिक कर दिया गया है। सड़क की तमीर से रोजाना 4,500 गाड़ियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात में मैसर आएंगी। 13 करोड़ से कोटली निजात तक लियाकत चौक और चौराहा मोड़ का रोड मुल्तान शुजाबाद को मुकम्मल कर दिया गया है। 8.25 किलोमीटर तवील शाहरा से अवाम उन्नास को फ़ायदा होगा। इजलास में मलिक सुहेब अहमद बर्द का कहना था वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शाहराहों की तमीर के मनसूबे को मुकम्मल किया जा रहा है। लाहौर में कमर्शियल इमला के पानी का बेतरेग इस्तेमाल जारी है। वाटर मीटर इस्तेहाल नस्ब न हो सके।
वासा का मीटरिंग मंसूबा ऐलानात तक महदूद रहा, अमली पेशरफ न होने के बराबर रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। शहर में कमर्शियल सेक्टर के पानी के इस्तेमाल पर मौसर निगरानी का निज़ाम कायम न हो सका। प्लाजों, शॉपिंग मॉल्स और कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट्स में रोजाना हजारों गैलन पानी इस्तेमाल होने के बावजूद बाकायदा मीटरिंग का फुकदान बरकरार है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत महदूद पैमाने पर मीटर्स नस्ब करने का दावा सामने आया, मगर शहर के वसी कमर्शियल नेटवर्क तक उसका दायरा कार नहीं बढ़ाया जा सका। गुलबर्ग और गार्डर टाउन में बाकायदा तनसीब के ऐलानात किए गए, लेकिन जमीनी सतह पर काम का आगाज न हो सका। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल सारिफीन इस वक्त भी फिक्स रेट पर बिल अदा कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल मामूल से कई गुना ज्यादा क्यों न हो, मीटरिंग सिस्टम न होने के बायस असल खपत का दुरुस्त अंदाजा मुमकिन नहीं। 500 मिलियन रुपए के रिवॉल्विंग फंड के क्याम का ऐलान किया गया ताकि जदीद वाटर मीटर्स खरीद कर नस्ब किए जा सकें, ताहम फंड्स के अमली इस्तेमाल और पेशरफ्त के हवाले से वाज़ेह तफसीलात सामने न आ सकी। लाहौर जैसे शहर में आबादी और कमर्शियल सरगर्मियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, पानी के वसाइल का दुरुस्त इंतजाम नागजीर हो चुका है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन।